हेलो। हम स्टार्ट करेंगे अभी स्लाइड शो। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं गौरव गावंड फोटो सर्कल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ 161 स्लाइड शो में। इससे पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए और इफ पॉसिबल वीडियो भी बंद कीजिए ताकि आपको स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फोटो सर्कल क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा एंड देन आई विल स्पीक अबाउट टुडेज एमिनेंट फोटोग्राफर जो हमारे स्पीकर है। फोटो सर्कल सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन formed by enthusiastic and active photographers in the year 1998। जैसे कि हमारा मोटो कहता है टुगेदर वी प्रोग्रेस, और वही काम फोटो सर्कल सोसाइटी ने आज तक किया है। हम सब रूरल और अर्बन एरिया के फोटोग्राफर्स को एक चांस देते हैं टू ग्रो विद अस। हम लोग का मेन मोटो होता है कि वी हैव स्लाइड शोज विच आर गाइडेड बाय एमिनेंट फोटोग्राफर्स, एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स। हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है ऑन फोटोग्राफी सब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज होती है और अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस होता है। हमारा मेन एग्जीबिशन होता है जो कि आविष्कार है, थाने मेयर के द्वारा हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं एंड द यूएसपी इज कि इसका कैश प्राइस होता है 5,50,000 रुपीज। टोटली हमारे पास 100 प्राइजेस होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं इन रुपीज में। और इसी के साथ जैसे कि आपने देखा है कि 2 साल से हम कोविड में हैं, तो वी हैड ऑर्गेनाइज्ड फोटो मोबाइल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट ऑल्सो, जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ हमने एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी हम प्राइजेस देते हैं और रिकग्निशन देते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टुडेज एमिनेंट स्पीकर जो कि चित्रा जोशी मैम है। मैं उनके बारे में आप सभी को बताता हूँ। Chitra Joshi ma'am has done a PhD in physical chemistry from Mumbai University. She has overall 43 years of teaching experience and been retired as vice principal from Ram Nimas Surya Junior College, Matunga, Mumbai. She is also an author of chemistry textbook, practical book, and CET books. She served as a leader of India team to the International Junior Science Olympiad at Doha, Qatar in 2019, where India team bagged Best Country Award among 52 countries. She has vivid interest in nature photography and visited many national parks in India and abroad, including Malaysia, Bhutan, Kenya, Tanzania, and Bali. She has participated in more than 130 national and international photography competition saloons and circuit and bagged 500 plus acceptance and 40 plus awards during last 1.5 year. She has been awarded photography distinction as honorable EFMP in FIP. Now I would like to welcome Dr. Chitra Joshi ma'am to start the slideshow. मैत्रिणींच्या ग्रुपवर Thank you, Gaurav. I'm thankful to the Photo Circle Society to giving me this opportunity to interact with you people. My today's slideshow is about story behind my nature photographs. It is said that a woman is behind every successful man, but in my case, it is reverse. My husband is behind my success, and without his support, it is impossible for me to achieve success. Now, why we click photographs? We click photographs for different reasons: self-satisfaction, people satisfaction, judges satisfaction. So first I was clicking photographs for my satisfaction, that is self-satisfaction. When I got satisfied myself, then I started clicking photographs of my friends. And then I started putting it on media. When I used to get more likes for the photograph, that means the people are satisfied with my photographs.
Then the judges' satisfaction. Now, judges' satisfaction means actually I wanted to see whether I stand, where I stand exactly in the photography field. For that reason, I started participating in different circuits and salons during pandemic period, because during pandemic period, you know that we all were at home, and then we had time also to see our photographs. So I then took decision to participate in the different salons. And here, if you satisfy judges, then you either get acceptances or prizes. Here, I have received more than 500 acceptances and more than 40 awards during pandemic period, that is since August 2020 till last week, because after last week, I have not updated my achievements. I have started participating in Salon during pandemic period only. So this actually my real achievement started during pandemic period. So that pandemic period was really a good period for my this photographic career, I would say. I'm traveling to take photographs within and out of India. My genre of photography, I call it is general. Though my inclination is to click more of a birds and wildlife photographs, but due to pandemic period, I have started street photography. So this is a new field for me, street photography. So when you go on a street and try to click photographs of the people on a street, you have to be very careful. That I realized at that time, because in nature, when you click photograph of birds or animals, they never take objection, but these people may take objection. So you have to be very careful when you are clicking these street photographs. I was teacher by profession. So according to me, photography is the best combination, or I can say fusion, of art and science. So if you know science and if you know how to play with light, then the photographer may be very successful. Here, I'm not here to deliver any lecture on photography. I'm not a technical person and do not know much about technical terms used in photography. So here I want to share with you the equipments used for my photography. The equipments what I use for the photography is a 7D and 5D Mark III camera. I use lenses 1632 mm, 2405 mm, 70-200 mm, 100-400 mm, 300 mm prime lens, and all these lenses are Canon lenses. Whereas 150-600 mm, that is a Tamron lens, which is heavy for me, and micro lens, that is 90 mm, f2.8 micro, that is also of Tamron I use. I do not use any filter for photography. And here, when we are on the field in nature photography, it's really difficult to change our lenses. If some wide angle, something, if it is seen in front of us, and if that scene is very nice, then it's really difficult for changing the lens. So I have purchased one pocket camera, that is Sony RX105, and lens range is 2470 mm. Since I have 70-200 mm, so I have preferred 2470 mm for wide angle. In almost all cases, camera and the lenses are handheld, because I feel if I use tripod, my movement will be restricted. So to avoid this restricted movement, I handle my camera in hand only. Here in this slideshow, I'm presenting my images and discuss with you why these photographs are were clicked. Now I will start with my presentation. I request to share. Just Gaurav, can you share? Can I share the screen? Yeah, the option on केले मी. Share करा Okay. ना तुम्ही.
आता हा पुढे स्लाइड शो जो होईल तो हिंदीमध्ये होईल बरं का. ओके ओके. तो आज के स्लाइड शो की शुरुआत में अपने गणपति जी को नमन करते हुए गजराज से कर रही हूँ. ये हाथी जो रहते हैं वो अपने बच्चों का काफी ख्याल रखते हैं. हमेशा वो जंगल में घूमते हुए अपने बच्चों को झुंड के बिल्कुल बीचों बीच रख के घूमते हैं. ये फोटो जो है ये मैंने केनिया में क्लिक की है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ मेल और फीमेल दोनों हाथियों को हाथी दांत है, तस्कर है वो सब. और ये छोटा बच्चा जो है वो हाथ जैसे वो मुंह में लकड़ी पकड़ के सबको भगा रहा है, लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हाथी उसको बीचों बीच अपने रख के चल रहे हैं. अभी इस नेक्स्ट फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि हाथी अपने परिवार की काफी सुरक्षा चाहते हैं. और इसी कारण वो जब नदी में नहाने के लिए ये पूरा परिवार गया है तो हाथी ने अपने बच्चे को अपने पैरों के पास में रखा है और दूसरे हाथी को वो नहला रहा है. ये तस्वीर मैंने श्रीलंका में खींची है और इसमें भी आप देख सकते हैं हाथी अपने बच्चे की कैसे निगाह रख रहा है. इस फोटो में मानो दो मित्र अपने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के जैसे चलते हैं, इसी प्रकार ये हाथी एक दूसरे पे सूंड रख के चलते हुए नजर आए. तो बहुत खुशी हुई वो देख के कि हाथियों में भी ऐसी दोस्ती होती है. ये जो फोटो है इस फोटो ने काफी एक्सेप्टेंस और अवार्ड्स लिए हैं. इस फोटो में दो हमउम्र हाथियों को मैंने जूझते हुए देखा. ये भी केनिया की तस्वीर है और दोनों को टस दिख रहे हैं, यानी हाथी दांत दिख रहे हैं. और ये डेफिनेटली ये झगड़ा ही कर रहे थे क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं पाँव के पास काफी मिट्टी उड़ रही है. तो वो पूरे अपने जोर से पूरे ताकत से एक दूसरे से जूझ रहे थे. और इस फोटो को मैंने मस्ती करके नाम दिया है. और ये फोटो जो है वो 70 mm से खींची गई है. जनरली जब मैं जानवरों की फोटो लेती हूँ तो 70-200 mm ही यूज करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि आसपास का सब एरिया भी उसमें कवर हो जाता है और उस तस्वीर के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो तस्वीर अपने आप में ही बताती है कि किस लिए खींची गई थी इस तस्वीर. हाथियों को कोई भी अपने एरिया में आया हुआ पसंद नहीं आता है. कोई अगर उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत ही उनको वहां से भगा देते हैं. ये तस्वीर जो है ये श्रीलंका में खींची गई है. जैसे ही इस हाथी ने देखा कि कुछ घुसपास उसके एरिया में घुस रहे हैं और तुरंत ही झाड़ियों में से बाहर निकला और उसने अलर्ट किया, देखो मैं यहाँ हूँ. क्योंकि ये हाथी इतना बड़ा जानवर होकर भी जब वो झाड़ियों में चला जाता है तो बिल्कुल गायब सा हो जाता है, दिखता नहीं है वो यहाँ पे खड़ा है करके. क्योंकि ये झाड़ियां भी उतनी ही बहुत गहरी रहती है झाड़ियां भी और इस वजह से वो हाथी दिखते नहीं है अपने को. ये हाथी का बच्चा, बहुत छोटा सा हाथी का बच्चा जो है, हेलो दिख रहा है? हेलो ओ दिसतंय इमेज. ओके चित्रा प्रॉपर चाललंय. ओके ओके ओके. ये हाथी का छोटा सा बेबी एक टूरिस्ट जीप के पास आ गया और वो टूरिस्ट जीप के पास आते ही टूरिस्ट लोगों ने उसकी जीप में के टूरिस्ट लोगों ने उसकी तस्वीर खींचना शुरू कर दिया. आप देख सकते हैं ये पूरा कीचड़ में लथपथ हुआ हाथी का बच्चा टूरिस्ट जीप के पास में आ गया और जैसे ही वो पास आया और टूरिस्ट उसकी फोटो खींचने लगे तो उसके झुंड में से दूसरा बुजुर्ग हाथी आगे आया और उसने उस टूरिस्ट जीप को अलर्ट कर दिया, देखो मैं यहाँ पे हूँ, उसे आप परेशान मत कीजिए, मैं उसका रखवाला यहाँ पे मौजूद हूँ. ये केनिया में खींची हुई तस्वीर है.
क्या हुआ, हमारी जीप चल रही थी और साइड से ये पांचों मानो जैसे तोपें बाहर निकलती हो वैसे ये घास में से बाहर निकले, और उनको देखते ही ऐसे महसूस हुआ दिस इज आर्मी ऑफ 5, क्योंकि वो आर्मी जैसे चाल करके आती है अपने ऊपर, उसी प्रकार ये झुंड जो है वो पूरा 5 जनों का बाहर निकला। तो इसको मैंने इस तस्वीर को आर्मी ऑफ 5 करके नाम दिया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के जो हाथी ये जिराफ है वो एक दूसरे के लड़ने की तैयारी में है। और हॅलो चित्रा, पिक्चर हलत नाहीये, हलत नाही आहे म्हणजे जे पुढे जात नाहीये, एकच सिंगल हत्तीचं चित्र दिसतंय, कॉमेंट्री तुझी वेगळी चालली. मॅम इमेजेस चेंज नाही होत आहेत. ओके, हत्तीचंच दिसतंय. म्यूट कर. ओके. सगळ्यांनी म्यूट करा प्लीज. आता दिसतंय. स्टॉप शेअरिंग करून मला परत शेअरिंग करायला. एकदा परत शेअर करा, ते आय गेस हँग झालेलं. स्क्रीन शेअर नाही झाली आहे. ओके, आता झाली आहे. आता दिसतंय. मॅम ते पुढे विंडो आहे ना, ते बंद करा जरा. एक विंडो आय गेस पॉपअप आहे. आता दिसतंय. हो, पण ते इमेज आहे ना त्याच्या पुढे आम्हाला एक दुसरं टॅब दिसतंय मागे. इथे काहीच नाहीये. बंद करा आणि परत चालू करा ना स्क्रीन शेअरिंग. टोटली क्लोज करा स्क्रीन शेअरिंग. आणि आता चालू करा. ओके. रिड्यूस केला तर होणार नाहीये शेअर ते. आता होतंय. हा, आता प्रॉपर आहे. गुड टू गो. ये 5 जिराफ जो है वो साइड के घास में से एकदम हमारे जीप के सामने आए, जैसे कि तोपे आर्मी की आती है उसी प्रकार से वो हमारे जीप के सामने आए। तो उनको देख के ऐसे महसूस हुआ कि दिस इज आर्मी ऑफ 5, सो आई हैव गिवन नेम टू दिस पिक्चर एज अ आर्मी ऑफ 5। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि राइट साइड के जो जिराफ है वो जैसे एक दूसरे को जूझने के लिए तैयार रहते, और इनके ऊपर का जो डिजाइन है वो पहले वाले जिराफ से अलग है। आप देख सकते हैं वो, तो ये जो है ये रेटिकुलेटेड जिराफ है और ये न्यूबियन जिराफ से। तो जिराफ में भी अलग अलग आपको कैटेगरी दिखती है। ये जिराफ नीचे अपनी गर्दन झुका के जमीन पर के पौधे के पत्ते खा रहा था। जब जिराफ अपनी गर्दन नीचे झुकाता है तो उसके ऊपर हमला करना जानवरों के लिए आसान हो जाता है। तो हमलावर जानवर ज्यादा करके उसके ऊपर जिराफ इसी कंडीशन में करते हैं जब उसकी गर्दन नीचे होती है। पानी पीते हुए भी जिराफ को नीचे ऐसे ही झुकना पड़ता है और पाँव फैला के वो पानी पीता है। अभी इस जिराफ को आप गौर से अगर देखें तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पंछी है जो रेड बिल एंड येलो बिल ऑस्पेकर्स है। तो उन पंछियों को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। और ये पंछी जो है ये जिराफ के ऊपर जो इंसेक्ट्स बैठते हैं उनको खाते हैं।
ये अगली जिराफ की तस्वीर जो है वो जिराफ की चाल दिखाने के लिए मैंने खींची थी। ये जिराफ थोड़ी देर बाद दौड़ने लगा और दौड़ते हुए इसकी जो पाँव की मूवमेंट थी वो इस प्रकार थी, वो घोड़े की तरह या हिरन की तरह नहीं थी। आगे के दोनों पाँव सामने की ओर उछाल के वो नहीं भाग रहा था, तो एक साइड के पाँव पीछे और एक साइड के पाँव आगे, इस तरह से वो चल रहा था। इसी तरह से वो दौड़ भी रहा था। तो इसकी दौड़ जो है वो बाकी के जानवरों से, यानी घोड़ा या हिरन या कुत्ते भी आप कह सकते हैं, उनसे अलग रहती है। वो दिखाने की कोशिश मैंने इसमें की। ये वेलवेट मंकीज है, ये केनिया में ही पाए जाते हैं और ये हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। तो ये केनिया के बंदर है, अपने यहाँ जैसे लंगूर दिखते हैं उसी तरह, लेकिन ये थोड़े अलग है। अगर आप उनका ये पोर्शन देखें तो यहाँ ब्लूइश कलर दिखता है आपको। ये ओरेंगुटो है। ओरेंगुटो एक अपने बच्चे को लेके पेड़ के ऊपर था। ये ओरेंगुटो जो है ये काफी ताकतवर रहते हैं। तो इसने कुछ ही देर पहले हमारे सामने एक बड़ा नारियल मोटे छिलके वाला नारियल हाथ से तोड़ा और उसमें से पानी खुद पिया थोड़ा और अपने बच्चे को थोड़ा पिलाया, और फिर वहां से वो नीचे उतरना चालू किया उसने। तो ये मम्मी अपने बेबी को लेके नीचे उतर रही थी, उसको देख के बहुत डर लगा। ये मलेशिया में खींची हुई तस्वीर है। ये काफी ताकतवर रहता है ये जानवर। सो अगर ये आसपास कहीं दिखे तो उससे जरा बच के थोड़ा दूरी बना के फोटो निकालने पड़ते, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा रहती है। ये बबून है। बबून के बच्चे हमेशा उनके पीठ के ऊपर सवार होकर ही चलते हैं। इस बबून को देख के पिछली बार जब हम लोग गए थे केन्या, तब की एक बात याद आई। हमारे एक साथी ने अपने माँ के हाथों बने हुए लड्डू लाए थे, पूरा डब्बा भर के लड्डू थे वो। और वो लड्डू सफारी में जाते हुए हम लोग खाएंगे ऐसा सोच के उसने वो डब्बा एक थैली में भर के, वो थैली हाथ में लटका के चल रही थी, जीप की ओर बढ़ रही थी। बस उसके 2 ही कदम पीछे में थी। हम लोग चल ही रहे थे, उतने में एक ये बबून कहीं से उछल के आ गया। बहुत स्फूर्ति से आया, वो बहुत तेजी से आया और उस मेरे साथी के हाथ का वो थैला जो था, डब्बे के साथ का थैला, वो खींच के एकदम भागा झटके से। वो साथी मेरी जो थी वो अपने आप को संभल पाती, उतने में ये महाशय जाके अपना होटल के छत पे बैठे और उन्होंने लड्डू पार्टी शुरू कर दी अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ वो लड्डू खाने लगे। अभी माँ के हाथ के असली घी से बने लड्डू ये बंदरों के मुंह में जाते, उसको बेचारे को काफी दुख हुआ। और सबसे बड़ा अफसोस उसको ये था कि लड्डू गए सो गए, मेरा टपरवेयर का अच्छा डब्बा भी चला गया। तो वो इसलिए अफसोस कर रही थी कि मेरा टपरवेयर का डब्बा भी ले गया ये। तो इतने में हमें से एक ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ये डब्बा तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। डब्बा लड्डू खाने के बाद ये डब्बा नीचे फेंक देगा। तो हम लोगों को ये लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी हम लोगों ने सिक्योरिटी वालों को बोल के रखा कि अगर ये डब्बा नीचे गिरा है तो जरा उठा के रख लो। और सच ही जब शाम को हम लोग वापस आए हमारे सफारी से, तो ये खाली डब्बा मिल गया। तो लड्डू खाने के बाद उसने वो खाली डब्बा नीचे फेंक दिया था, इंटैक्ट खाली डब्बा वो मिल गया उसे। तो ये बात जस्ट याद आई, इसलिए मैंने आपसे साझी की। तो इन बंदरों से काफी संभल के रहना पड़ता है। खाने की कुछ चीजें हाथ में थैली में लटका के मत चलिए। ये फ्रेम मुझे काफी अच्छा लगा। टूटे पेड़ के नीचे ये पूरी बबून फैमिली बैठी थी और ये आराम फरमा रही थी दोपहर के वक्त, इसलिए ये फोटो निकाला है मैंने। जैसे मानवों में संघर्ष होता है 2 पीढ़ियों में, उसी प्रकार मैंने देखा कि बंदरों के 2 पीढ़ियों में भी संघर्ष होता है। और ये छोटा बंदर देखिए कैसे बड़े बंदर के ऊपर ये अपना ताव दे रहा है या उसके ऊपर चिल्ला रहा है। आप उसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वो कैसे उसके ऊपर गुर्रा रहा है। ये 2 छोटी गिलहरियां जंगल में एकदम जान की बाजी लगाते हुए भागते हुए देखी।
अब ये इतनी जोर से क्यों भाग रही है, क्या हो गया, क्या दिखा इनको, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जिस तरफ से वो भागी, वहां जस्ट मैंने कैमरे की लेंस घुमाई तो मुझे इस महाशय को उनके घर से, उनके बिल से बाहर निकलते हुए मैंने देखा। तो इसको देख के वो जान की बाजी लगा के भाग रही थी। तो जंगलों में छोटे प्राणी हमेशा बड़े प्राणियों से सतर्क रहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये दरअसल ये फोटो मैंने अब ये घोंसले जो है, ये बाया वीवर के घोंसले हैं, उनको क्लिक करने के लिए निकाली थी कि कितने सारे ये बाया वीवर के घोंसले हैं। और ये घोंसले जो है वो अपने भारतीय बाया वीवर से अलग है। ये केनिया में खींची गई तस्वीर है। ये घोंसले जो है वो सेक्शन में से आप देख सकते हैं। लेकिन इस पेड़ के नीचे धूप से बचने के लिए एक इम्पाला का पूरा झुंड भी दिखा उसी समय। और ये आपको 200 mm से खींची हुई तस्वीर है, इसलिए आजू बाजू का सब इलाका देख सकते हैं आप। यहाँ दो इम्पाला एक दूसरे से जूझ रहे थे और इतने में देखा कि ये तीसरा इम्पाला जो थोड़ा दूर खड़ा था वो एकदम से भागने लगा। तो क्या हुआ होगा कि ये इतना जोर से भाग रहा है। देखा तो ये बाजू के झाड़ियों में ये दो शेरनियां उनको घूर रही थी। तो झगड़ते हुए इम्पाला को अगर हो सके तो दबोच ले, इस ख्याल से वो उनकी तरफ घूरती हुए नजर आई। ये फोटोग्राफ जस्ट सुबह के समय मैंने लाइट इफेक्ट ये इम्पाला के ऊपर देखने के लिए खींची हुई तस्वीर है। एकदम सुबह की सुनहरी लाइट थी और ये इम्पाला के स्किन पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है वो देखने के लिए खींची ये तस्वीर। मेरी तस्वीरें मैं ज़्यादा एडिट नहीं करती हूँ, जैसे खींची हुई रहती है उसी इसमें शेयर करती हूँ। ये हम लोगों ने टांजानिया में हम जब गए थे तब ये विल्डबीस्ट जो है वो माइग्रेशन के लिए तैयार खड़े थे। करीबन 3 लाख विल्डबीस्ट माइग्रेशन के लिए तैयार थे, ऐसे हमारे ड्राइवर ने बताया। और उतने ही करीबन ज़ेब्रास भी खड़े थे माइग्रेशन के लिए। ड्राइवर ने जानकारी हम लोगों को दी। अब इस झुंड में ये विल्डबीस्ट एक दूसरे के साथियों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ते झगड़ते हुए भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये विल्डबीस्ट देखने में काफी अजीबोगरीब प्राणी है। इसका मुंह देखिए बकरे की तरह है, उसको दाढ़ी है, उसकी पूंछ घोड़े की तरह है, उसको सींग गाय की तरह है। तो वह देखने में काफी गरीब जानवर दिखता है। लेकिन ये गरीब जानवर भी एक दूसरे से जूझता हुआ नजर आया। तो मैंने इस तस्वीर को खींचा और इस तस्वीर को भी काफी एक्सेप्टेंसेस और अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, इसके बारे में बहुत मज़ेदार कहानी है। हम लोग गए थे टांजानिया, तो एक जगह पे क्या हुआ कि जीप रुकी और ड्राइवर ने कहा आप नीचे उतर के वो एक रस्सी का ब्रिज बनाया, उसके ऊपर से दूसरी तरफ जाके फ़ोटो खींच सकते हैं, अच्छे आपको फ़ोटो मिल सकते हैं वहाँ से। और फिर मैंने देखा कि हमारे ग्रुप के दूसरे जीप के 2 लोग आगे गए उस ब्रिज पर से। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलूं उस, एक तो वो रस्सी का बना हुआ ब्रिज था, छोटा सा ब्रिज था, थोड़ा हिल रहा था। फिर भी मैंने 3-4 कदम में आगे बढ़ी और कुछ 3-4 कदम आगे बढ़ने के बाद जब नीचे नजर गई तो ये सारे हिप्पोज मुझे पानी में दिखे। उनको देख के तो मैं डर के मारे पीछे आ गई और जहाँ खड़ी थी उधर से ही मैंने ये फोटो खींची है। इतने सारे हिप्पोज जो है वो पूल में थे, नीचे के पूल में थे और इसको हिप्पोज पूल करके वो लोग वहाँ से वहाँ के लोग इसको संबोधते हैं। इस हिप्पोज के बारे में हमारे ड्राइवर ने कुछ ऐसी जानकारी दी थी कि हिप्पोज की वजह से अकेले टांजानिया में ही साल में करीबन 100 से ऊपर आदमियों को मारा जाता है। ये हिप्पोज आदमियों को मार के खाते नहीं है, लेकिन वो मार जरूर डालते हैं। अगर उनके एरिया में कोई घुसा तो उसे वो मार देते हैं। ये सुना हुआ था ड्राइवर के मुंह से, इसलिए मैं डर के मारे पीछे हो गई और इनकी फोटो मैंने बाहर से खींची। दूसरी बात उसने ऐसे बताई थी कि हिप्पोज जो है ये पानी के नीचे जाते हैं क्योंकि उनको सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए वो शाम होते तक पानी में डूबते रहते हैं और शाम या रात में ही वो जमीन पर आते हैं।
तो इट इज सेफ टू गो देयर, ऐसे उसने कहा था, लेकिन वो थोड़ा गलत था। ये आगे के पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ये हिप्पोज जो है ये एक दूसरे से लड़ते हुए अपना अपना जबड़ा पूरा फैलाते हैं। जितना बड़ा वो उसका जबड़ा रहेगा उतना ताकतवर वो हिप्पो माना जाता है। तो आप देख सकते हैं उसके दांत, देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अगर ये दांत घुस जाए किसी के अंदर तो पूरा तो फाड़ी देंगे, मार भी डालेंगे किसी को। तो इस प्रकार से ये अपनी ताकत जता रहा है ये हिप्पो। आगे के तस्वीर में आप देखिए, ये दोपहर के बराबर 12 बजे मैंने ये इस हिप्पो को जमीन पे देखा। कुछ जेब्रास के पिल्ले उसके एरिया में घुसे थे, तो उनको भगाने के लिए वो वहां उनके पीछे पड़ गया था। ये तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जस्ट रिकॉर्ड शॉट करके मैंने खींचा कि हिप्पोज दिन के भी सूरज में भी जमीन पे पाए जाते हैं, कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ शाम को या रात में आते। ऑफ कोर्स रात में शाम को उनकी संख्या ज्यादा रहती है जमीन पे, लेकिन दोपहर में भी एक आध दूसरा हिप्पोज तो देख ही सकते हैं आप जमीन के ऊपर। ये दारोजी में खींची गई तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे काफी बड़ी स्टोरी है, वो जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली हम लोग हम्पी बदामी देखने गए थे, मैं और अजीत मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने प्लानिंग किया था हम्पी बदामी देखे। इसी कारण हमारे जो लेंसेज थे वो वाइड एंगल लेंसेज थे। जूम में केवल 18-135 जो किट लेंस रहता है वो, और 70-200 ये दो ही केवल जूम लेंस हमारे पास थे। बाकी सब वाइड एंगल लेंसेज थे। क्योंकि ये दारोजी हमारे प्लानिंग में नहीं था, हम लोग हम्पी के लिए गए थे। लेकिन हम्पी जाने के बाद ऐसी जानकारी मिली कि दारोजी यहाँ से केवल 10 किलोमीटर पर ही है और वो आप देख सकते हो। तो हमने सोचा चलो नेक्स्ट डे अगली मॉर्निंग हम लोग दारोजी जाएंगे। ऐसे सोच के हम लोग दारोजी गए। वहाँ के गाइड से हम लोगों ने कांटेक्ट किया रात में, तो गाइड बोला ठीक है आप सुबह में आ जाइए, चले जाएंगे हम लोग। तो दारोजी में क्या हुआ, एक जगह पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी उसने रोकने के लिए कहा। हमारे साथ वो गाइड का सहायक और हम दोनों, हम लोग केवल 4 लोग थे उस विजिट में। और एक जगह गाड़ी रोकने के बाद वो बोला अब यहाँ से करीबन 500 मीटर हम लोगों को पैदल चलना है और एक हाइट में बैठेंगे। ये हाइट यानी क्या, वो एकदम डेलिकेट हाइट थी, अपने बांस की बनी हुई हाइट थी कि अगर इस भालू ने आके एक झापड़ मारा तो वो टूट जाती, इतनी डेलिकेट हाइट थी। तो उस हाइट में जाके हम लोग बैठे। उसके बाद उसके सहायक ने ये जो पत्थर है उन पे शहद लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने शहद लगाना शुरू किया तो वहां से एक एक करके करीबन 7 भालू वहां पे पहुंच गए। और ये 7 भालू हमारे सामने थे, बिल्कुल पास में थे, उनको देख के डरे। आप सोच सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये 70-200 mm से खींची हुई, तो इसका मतलब ये कितने पास में थे। और एक्चुअली अगर वो 200 यूज करते तो वो सिर्फ इसका इतना ये मुंह का पोर्शन आता, इतने पास में वो थे भालू। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं ये 2 माँ और उसका बच्चा हमारे हाइट के बिल्कुल पास आया। कैमरे की आवाज आने के कारण ये बच्चा कैमरे में देख रहा था, घूर रहा था। और देखिए इसका मुंह भी खुला है पूरा। वो जैसे जैसे हमारे पास आए मुझे तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि बचपन में काफी स्टोरियां ये भालुओं के बारे में सुनी थी। वो नाखून से आदमियों को फाड़ देते हैं, खाते नहीं है लेकिन मारते जरूर है, फाड़ देते हैं। और ये मेरे कैमरे के लेंस में देख रहा था और मेरी नजर उसके नाखूनों पे और उसके मुंह पे थी। उनके इतने बड़े बड़े नाखून देख के सच पसीने छूटने लगे थे। तो शाम तक हम लोग उस हाइट में बैठे रहे। उसके बाद जैसे सूरज ढलने लगा तो हम लोगों ने सोचा अभी हाइट से निकले यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होने के बाद तो मुश्किल होता है ना। तो हम लोग शाम ढलते ढलते वहां से हाइट से बाहर निकले। जैसे हम लोग हाइट से बाहर निकले तो पास वाले पहाड़ से कुछ लोग एकदम से चिल्लाने लगे और वो उनकी भाषा में कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। उन्होंने कुछ हम लोगों को रुकने का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनकी भाषा में। तो उनकी भाषा तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो उस समय कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है।
तो उतने में हमारे गाइड ने कहा कि हम लोग चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ऊंचा करें, और जैसे मानो एक बड़ा प्राणी कोई चल रहा है, बड़ा जानवर चल रहा है, इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए वहां से निकले, नहीं तो निकलना मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने एक दूसरे की हाथ पकड़ के हाथ ऊंचे करके, एक बड़ा प्राणी चल रहा है, एक बड़ा जानवर चल रहा है, इस प्रकार से अपने को प्रोजेक्ट करते वहां से दौड़ना शुरू किया। अभी पाँव में वहां काटे जा रहे थे, कपड़ों में पेड़ों के कांटे फंस के कपड़े फट रहे थे, उस किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो 500 मीटर की दूरी हम लोगों को तय करके हमारी गाड़ी में बैठना काफी जरूरी था। तो इस प्रकार हम लोग दौड़ते दौड़ते उस गाड़ी में हमारे जाके पहुंचे। जैसे ही गाड़ी में मैं बैठी तो हमारे ड्राइवर ने बताया, मैम पता है आपके साथ क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं आती ना, उनके भाषा में वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा था। नहीं पता नहीं क्या हुआ ना। मैं ये पहाड़ के ऊपर मैं भी था बाकी लोगों के साथ, तो आप चारों को 7 भालुओं ने घेर रखा था, यानी किसी भी मोमेंट आपके ऊपर अटैक हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए और इस प्रकार आपको बाहर दौड़ते हुए आना पड़ा। अभी ये बात जब मैं सोचती हूँ या बताती हूँ किसी को, तो तब भी मेरे शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में उस दिन हम लोग बच निकले वहां से, क्योंकि ऑन फुट थे, पैदल चल रहे थे हम लोग जंगल में, वो भी ये भालुओं के एरिया में। और ये भालुओं के नाखून देखिए कैसे बड़े बड़े। ये केनिया में खींची गई तस्वीर है। इस केनिया में खींची गई तस्वीर में ये डिग डिग करके बहुत छोटा मृग रहता है, और ये काफी शर्मीला मृग रहता है, शर्मीला हिरन रहता है। जैसे ही उसको किसी की आहट होती है वो भाग जाता है। वो इतना इसका अच्छा फोटो मिलना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारे जीप्स के टायर यहाँ से गए हुए, और ये रास्ते में बीचों बीच खड़ा है डिग डिग। वहां से वो हिल नहीं रहा था जरा भी। सोचा क्या हुआ इसको, हमारी जीप इतने पास आई तो भी यहाँ हिल नहीं रहा था। वो बेचारा एक तरफ दुखी नजर से देख रहा था। तो क्या देख रहा था करके दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, तो देखिए ये हम देख सके यहाँ पे उसका साथी जो है उसको किसी ने मार दिया था, वो मरा पड़ा था, और वो दुखी डिग डिग वहां उसके इंतजार में था कि शायद वो उठ के भाग के उसके पास आए, इस इंतजार में खड़ा था। तो ऐसे भी कुछ देखने को मिलता है जंगलों में। ये तस्वीर केनिया में ही खींची है। केनिया में इस टाइप के व्हीकल्स रहते हैं जिसकी छत जो है ये ऊपर से खुल जाते हैं, और ऊपर खड़े रह के हम लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। तस्वीर एक्चुअली मैंने आपको ये जीप की जो रचना है ये दिखाने के लिए यहाँ पे रखी है तस्वीर। जीप को 4 दरवाजे रहते हैं। पीछे का दरवाजा खोल के 6 लोग अंदर जा सकते हैं। हर एक को खिड़की मिलती है। यहाँ पे 3 लोग और दूसरे साइड में 3 लोग, और यहाँ खड़े होकर अपने सीट पे खड़े होकर भी हम लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। और गाइड और ड्राइवर जो है वो आगे बैठते हैं। यहाँ से ये पार्ट खुलता नहीं है, तो ये लोग जो है उनको सिर्फ आगे का नजारा और साइड का नजारा दिखता है। तो हम लोग जा रहे थे मसई मारा, और मसई मारा में जाते हुए उसके पहले दिन अगले दिन ही बारिश हुई थी। वहां पे बारिश होने के कारण रास्ते में काफी कीचड़ था, और कीचड़ में ये जिप्सीज जो है वो फंस जाती है अगर धीरे चलाए तो। इसी कारण वो ड्राइवर ने हमें पहले ही बोला कि देखो सीट पे अच्छी तरह से अपने आप को जकड़ के बैठो, क्योंकि मैं बहुत फास्ट जिप चलाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने स्लो जिप चलाई तो अपनी जीप फंस सकती है। तो कीचड़ और टायर का कांटेक्ट न हो, इसलिए मैं फास्ट जिप चलाने वाला हूँ। एक तो वहां पे रोड कुछ बने हुए नहीं रहते जंगलों में, उबड़ खाबड़ रास्ते पे कीचड़ में वो जीप चला रहा था, और ये पीछे की तरफ हम लोग 6 लोग बैठे थे। हम लोगों को काफी जर्क बैठ रहा था। तो हमारे एक साथी ने उतने में ड्राइवर से बोला कि मुझे काफी तकलीफ हो रही है, जरा जीप रोक दो तो मैं सीट चेंज कर लूं। ड्राइवर ने जीप तो रोक ली। ड्राइवर ने जीप रोकते ही उन्होंने कहा कि ये दरवाजा जो पीछे वाला है ये अनलॉक करो, क्योंकि मैं आगे आके बैठना चाहती हूँ, आगे वाले को पीछे कर देंगे क्योंकि पीछे काफी जर्क बैठ रहे हैं। इस बात के लिए ड्राइवर ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये दरवाजे यहाँ तो खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये मसई मारा है, और मसई मारा में मैं दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलूंगा।
आपको जो भी एक्सचेंज करनी है सीट ये पीछे के पीछे करो, अगर आप यहाँ पे पीछे हो तो आगे आके बैठो या आगे वाले से रिक्वेस्ट करके उसको पीछे कर दो और अपने आप आपस में आप कुछ एडजस्टमेंट कर लो। बस ये ड्राइवर अपनी ये स्टेटमेंट पूरी कर ही रहा था कि इतने में देखिए झाड़ियों में से, ये घास में से ये पूरी लायन फैमिली बाहर निकली। 8 लायंस थे, मेल लायन, उसके साथ 3 फीमेल लायनेस थी और उनके बच्चे। ये 8 जन की फैमिली बाजू के घास से निकली। और 1 सेकंड के लिए लगा कि अगर वो दरवाजा खुलता तो क्या हो सकता था हमारे साथ, कि ये पूरी फैमिली वहां से निकली और सामने जाके एक पेड़ के नीचे विराजित हो गई और यहाँ पेड़ के छांव में ये पूरी फैमिली बैठी। जैसे ही ये फैमिली बैठी, ये आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है अपने पिताजी से मिलने, हाय डैडी, हेलो, हाउ आर यू करने पहुंचे। जैसे ही ये बच्चे पास में पहुंचे तो आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन था पिताजी का। उन्होंने तुरंत ही डांट के कहा, देखो कायदे से रहो, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, तो थोड़ा दूर ही रहो। ये एक्सप्रेशन पूरा इस फोटो में देख सकते हैं। इस फोटो को भी काफी एक्सेप्टेंसेस है, 1-2 अवार्ड भी मिले हैं इस फोटो को। ये छोटे लायन के बच्चे टूटे हुए पेड़ पे खेलते हुए नजर आए, इसलिए उनकी फोटो निकाली थी। ये पेड़ पे ऊपर नीचे टहल रहे थे, खेल रहे थे आपस में। 2 लायन को एक साथ देखना जरा मुश्किल रहता है, तो ये 2 लायन, मेल लायन एक साथ दिखे तो थोड़ा अचरज हुआ। तो जानने की मैंने कोशिश की ये मेल 2 लायन कैसे, क्योंकि हर लायन फैमिली में केवल एक ही मेल रहता है, बाकी सब फीमेल्स और उनके बच्चे रहते हैं। 2 मेल एक फैमिली में नहीं पाए जाते हैं। तो ड्राइवर ने बताया कि जब ये मेल लायन बड़े हो जाते हैं तो फैमिली से उन्हें अलग कर दिया जाता है और जब तक इनकी फैमिली नहीं बनती है वो साथ रहते हैं। एक बार उनकी फैमिली बनती है तो वो अपने दूसरे साथी को अपने फैमिली में से हटा देता है। अगर वो हटने को तैयार नहीं तो झगड़ा करके उसे हटा दिया जाता है। तो यहाँ ये 2 नोमैडिक लायंस, घुमाऊ लायंस जो है, मेल लायंस, वो दिखे। लेकिन इसमें से एक को हमारे जिप्सी का वहां आना शायद पसंद नहीं था, इसलिए वो हमारे जीप के ऊपर पूरा चार्ज करते हुए आया। ये मेरी फेवरेट तस्वीर है। एक्चुअली तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एक तो वो काफ़ी लो लाइट में खींची हुई तस्वीर है, हाई शटर स्पीड से खींची हुई तस्वीर है, तो इसलिए आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी ग्रेन्स है इस तस्वीर में। लेकिन इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हमारी सफारी खत्म हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो रहा था और हम लोग वापस निकलने के तैयारी में थे। इतने में 2 लायनेस, यानी 2 सहेलियां मैं कहूंगी, आपस में जैसे बात करते हुए धीरे धीरे चलती है, घूमने टहलने निकलती है, वैसे ये 2 लायनेस टहलते हुए दिखी मुझे हमारे जिप्सी के राइट साइड से वो जा रही थी। इतने में क्या हुआ पता नहीं, उसमें से एक लायनेस जो है वो हमारी जीप के तरफ एकदम फास्ट दौड़ते हुए आई। 1 मिनट के लिए लगा ये भूखी शेरनी शायद जीप में से किसी को उठा ले जाएगी। तो लेकिन कुछ सेकंड में वो हमारे जीप के लेफ्ट साइड में गई और उसने इस इम्पाला को, वहां खड़े इम्पाला था, ये हम लोगों को ध्यान में नहीं आया था कि इम्पाला यहाँ लेफ्ट साइड में खड़ा है। इस इम्पाला को उसने दबोच लिया और दबोच के उसने मार दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये दूसरी लायनेस जो है वो तुरंत ही पास में है। जैसे इसने ये शिकार किया, ये अपना हिस्सा मांगने वहां आ गई। फ्रेंड है ना, तो हिस्सा तो चाहिए। और फिर वो दोनों उस इम्पाला को पकड़ के बैठी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है अपने पंजे में उसको अपने करीब खींच रही है और इस इम्पाला के हमारे सामने देखते देखते 2 टुकड़े हो गए और कुछ ही मिनटों में उस इम्पाला का नामो निशान तक नहीं बचा। तो पूरे इस जीवन मृत्यु के एपिसोड का हम लोग चश्मदीद गवाह थे वहां पे। तस्वीर काफी ग्रेनी है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुली कैमरे में कैद हो गई है, उतना ही बहुत था हमारे लिए। इस तस्वीर को भी एक्सेप्टेंसेस मिले हैं। जब हम लोग जंगलों में घूमते हैं
तो हमेशा हम लोग जंगली जानवर या पंछियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये जंगली जानवर भी हमें इस प्रकार झाड़ियों में से छुप के देख लेते हैं, और झाड़ियों में से हम जब नजर आते हैं वो तुरंत ही कहीं भाग के छुप जाते हैं। ये जो है ये तेंदुआ है, लेपर्ड है। लेपर्ड ये काफी शर्मीला शख्स रहता है। इसे मैंने तांजानिया में शूट किया था। ये भाग गया, लेकिन बाद में उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि ये छुप गया भाग के। ये तस्वीर जो है ये श्रीलंका में ली गई तस्वीर है। काफी दूर था ये तेंदुआ, लेकिन ये बड़े पेड़ पर से बहुत संभल संभल के नीचे उतरते हुए मुझे ये फ्रेम काफी पसंद आई, इसलिए मैंने ये फोटो खींची। बहुत दूर था, लेकिन ये इसका पूरा जिस माहौल में वो रहता है, वो पेड़ और वहाँ की झाड़ियाँ, ये पूरी इस तस्वीर में नजर आ रही है। और किस प्रकार वो नीचे उतरता है अपने आप को संभलते हुए, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये श्रीलंका के याला नेशनल पार्क की तस्वीर है। हम लोग याला नेशनल पार्क गए तो धुआंधार बारिश हो रही थी, एकदम बहुत काफी जोर से बारिश थी। और ये महाशय हम लोगों को पेड़ पे बैठे दिखे, जो ये भी पूरे पानी से भीगे थे। तो ये भी रेन का एंजॉय ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे रेन में। हम लोग हमारे लेंसेस और कैमरे को बचाने की कोशिश में पूरी तरह से भीग गए थे, क्योंकि ये जो जीप्स रहती है वो ऊपर से ढकी रहती है लेकिन साइड से ओपन रहती है। और श्रीलंका की जीप्स जो है जो जरा ऊंचाई में ज्यादा रहती है, वहाँ आसपास का आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस जीप में खड़े होके भी घूम सकते हैं हम लोग। इस प्रकार की जीप्स रहती है, लेकिन ऊपर से वो ढकी हुई रहती है। तो इस जीप में बैठे मैं पूरी तरह से भीग गई थी, लेकिन कैमरा किसी तरह से बचाया था मैंने। और जैसे ही ये बारिश रुकी तो ये हमारे ताक में था कि मैं कहा कब यहाँ से नीचे कूदूं। इसमें वो बैठा हुआ पेड़ पे देखा, क्योंकि शायद ये उसकी हमेशा की जगह नहीं थी जहाँ वो बैठा था, उसे वहां से उतर के और कहीं जाना था। तो थोड़ी देर बाद उसने इस प्रकार से कुछ चेष्टा शुरू की, चलो निकलो अब यहाँ से, मुझे घर जाना है। जैसे मराठी में वो गाना है ना, मला जाऊ द्या ना घरी, वैसे वो कुछ कह रहा है, ऐसे महसूस हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब जीप बाहर निकाल के हम लोगों को कुछ चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग वहां से निकल पड़े, क्योंकि ध्यान में आया कि इसको यहाँ से नीचे उतरना है। ये तस्वीर जो है ये बेरा की तस्वीर है। जवाई बांध के पास बेरा नाम का एक प्रदेश है, वहां खींची हुई तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पहले के तस्वीरों में के माने में यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये अलग है। ये तेंदुए जो है, ये लेपर्ड जो है, ये पत्थरों में रहते हैं। और राजस्थान में जो आप पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ जो है ये कैक्टस के और बेरी के पेड़ ज्यादा है, वहाँ बारिश कम होती है। इसी वजह से ये पत्थरों में रहने वाले तेंदुए हम यहाँ देख सकते हैं। ये तस्वीर सुबह 6 बजे खींची हुई है। एक माँ अपने बच्चे के साथ वो बहुत बड़े पत्थर पे बैठी थी। एक्चुअली वो पत्थर के पहाड़ है वहाँ पे, सब पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो लैंडस्केप में आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ के पहाड़ किस प्रकार के रहते हैं वो। ये तो आप में से कई लोगों को पता ही होगी, ये ताडोबा फेमस माया है अपने बच्चे के साथ। ये काफी कैमरा फ्रेंडली है और अपने छोटे बच्चे के साथ वो बाहर निकली थी। ये तस्वीर मैंने काबिनी में खींची है। ये चारों टाइगर्स हम लोगों के जीप को क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। कैट फैमिली में के जो जानवर रहते हैं उनकी एक ये आदत रहती है, वो आगे निकलने के बाद एक बार तो जरूर पीछे मुड़ के देखते हैं। और वही मुझे जस्ट कैप्चर करना था कि आगे से आते हुए तो मैंने उनको कैप्चर किया अच्छी तरह से, लेकिन वो आगे निकलने के बाद एक बार पीछे मुड़े तो मुझे ये फोटोग्राफ बहुत अच्छा मिल सकता है। इस हिसाब से मैंने कैमरा वहीं पे सेट करके रखा था। और सच में इसमें से एक टाइगर ने पीछे मुड़ के देखा हमारे पास, और वो अंदाजा लेते हैं कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। ये टाइग्रेस जो है अपने 3 बच्चों के साथ देखी गई। सुबह सुबह हमने काबिनी में इसे देखा था।
कुछ जानवर जो है वो काफ़ी कैमरा फ्रेंडली रहते हैं और अच्छे पोजेस देते हैं। तो उनमें से एक है ये चीता। चीता अपने भारत में नहीं दिखता है, लेकिन ये चीता काफ़ी अच्छे पोजेस देता है जब हम लोग उसे शूट करते हैं। तो इसी प्रकार इस चीते ने एक अच्छी पोज दी मुझे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दो चीते बैठे हैं, उन्होंने भी पोज दी थी फोटो खींचने के लिए। वैसे ही जेबराज भी अच्छी पोज देते हैं फोटो खींचने के लिए। ये जेबरा की फैमिली को देख के ऐसे लगा कि मानो दो फैमिलीज एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस पिक्चर एज अ ग्रीटिंग जेबराज। एक दूसरे से वो मिल रहे हैं। एक्चुअली वो थर्मल एनर्जी अपनी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि दे आर ग्रीटिंग ईच अदर। ये तस्वीर की फ्रेम मुझे काफ़ी पसंद आई। काफ़ी धुंधला दिन था वो, काफ़ी गहरा कोहरा था, लेकिन जब ये सामने सब पूरा दिखा तो ऐसे लगा एक हाथ पेंटिंग मेरे सामने किसी ने रखी हो। ये वाटर बग नामक ये एंटीलॉप है। उसके बच्चे के साथ उसको देखा एम्बेसोल में, केनिया में। तो केनिया में अर्ली मॉर्निंग गहरे कोहरे में खींची हुई तस्वीर है ये मुंगूस। इसको हम्पी में खींचा है। ऐसे कहा जाता है कि बर्डर्स जब मुंगूस को देखते हैं, उनको मुंगूस का दर्शन होता है तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। और हम लोग बर्डिंग के लिए निकले थे, उतने में इस मुंगूस को देखा और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये पत्थरों के बीच में था लेकिन उसकी पूरी पूंछ भी मुझे मिल रही थी और ये मुंह खोले कुछ कहने की कोशिश कर रहा था दूसरों को। तो इसकी एक अच्छे लाइट में अच्छी तस्वीर मिली मुझे। जंगलों में घूमते हुए काफ़ी बार हम लोगों को ये कैमोफ्लेज रेप्टाइल्स या जानवर भी दिख जाते हैं। तो ये एक मॉनिटर लिजार्ड आप देख सकते हैं। ये एकदम पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था, कैमोफ्लेज था, लेकिन दिख गया इसलिए क्लिक किया उसको। ये दो आपस में कम्युनिकेट करते हुए जायंट स्क्विरल्स जो मैंने काबिने में शूट की। इसमें आप लाइट इफेक्ट क्या दे सकता है वो देख सकते हैं। ये भी लाइन्स जायंट स्क्विरल ये, लेकिन ये मैंने सावंतवाड़ी में शूट की थी। लाइट इफेक्ट के कारण शायद इनके कलर में डिफरेंस दिख रहा है। इस तरह की कुछ फनी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक चिंपांजी अपने सिर पे हाथ रख के बैठा है, मानो अभी क्या ये कैमरामैन आए मुझे परेशान करने, इस तरह से उसका कुछ आविर्भाव था, इसलिए मैंने ये खींची। सो ये जानवरों की तस्वीरें मैंने इतनी ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है। सम फोटोग्राफ्स ऑफ बर्ड्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मैं थाने से हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं थाने की जो खूबसूरती है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। थाने महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं इतने सारे तादाद में, इतने बड़े तादाद में ये फ्लेमिंगोज हमारे थाने क्रीक में आ जाते हैं, थाने खाड़ी में आ जाते हैं। ये तस्वीर जो है ये ऐरोली के फ्लेमिंगो सेंटर से खींची हुई तस्वीर है। बोटिंग के लिए हम लोग गए थे और बोटिंग शुरू होने से पहले दूर से खींची हुई तस्वीर है। इसमें ऐसे मानो लग रहा है कि एक पहाड़ के नीचे पिंक कलर की फेंसिंग बनी है और ये सब फ्लेमिंगोज जो है इतने तादाद में वहाँ खड़े थे। फ्लेमिंगोज जब उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तब वो पहले तो पानी पर से भागते। पानी पर से भागते हुए आप देख सकते हैं कि पानी के सतह पर का पानी जो है वो विस्थापित होता है और कुछ छींटे उड़ने लगती है और ये पूरा दृश्य जो है वो काफी सुहाना लगता है। तो ये पानी पे दौड़ते हुए फ्लेमिंगोज और उड़ान भरते हुए फ्लेमिंगोज आप देख सकते हैं। ये उड़ते हुए फ्लेमिंगोज काफी अच्छे लगते हैं। अभी वो क्यों अच्छे लगते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। ये फ्लेमिंगोज के बच्चे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कुछ कलर नहीं रहता है। ये मैंने जामनगर में खींची हुई तस्वीर है। ये तस्वीर थाना खाड़ी की है। ये जामनगर में खींचे हुए ग्रेटर फ्लेमिंगोज है। बिग वन में खींचे हुए लेसर फ्लेमिंगोज है। लेसर फ्लेमिंगोज का कलर जो है वो ग्रेटर फ्लेमिंगोज से ज़्यादा गहरा होता है
और ये एक पानी पे उतरता हुआ, ये भी थाना में खींची हुई तस्वीर है। पानी पे उतरता हुआ फ्लेमिंगो, जब ये उतर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पंख फैला के अपने आप को बैलेंस करते हुए उतर रहा है। और इसका जो कलर है फ्लेमिंगो का, बाहर की ओर कम है और अंदर की ओर ज्यादा है। सो अंदर की ओर ये कलर ज्यादा होने के कारण, ज्यादा रेडिश यानी अग्नि की तरह, फायर की तरह होने की वजह से ही वो उड़ते हुए फ्लेमिंगोज ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा लुभावने लगते हैं। तो इस फ्लेमिंगोज को अग्नि पंख भी कहा जाता है। ये शायद इनके पंखों का कलर अग्नि की तरह होने की वजह से ही इनको अग्नि पंख भी कहा जाता होगा। ये विंटर विजिटर्स से हमारे आक्षी बीच पे जब मैं गई थी तो इतने सारे तादाद में देखे थे पंछियों को आते हुए विंटर में। उसकी एक ये तस्वीर खींची है। आप देख सकते हैं ये बीच है, तो ये समुद्र का पानी है और उड़ते हुए ये पंछी देख सकते हैं। तो विंटर में काफी सारे विजिटर्स अपने यहाँ आते हैं। ये विजिटर, ये मंगला जोड़ी में खींची हुई तस्वीर है। ये 3 बार हेडेड गीज को उड़ते हुए मैंने कैप्चर किया। ये भी हिमालय से यहाँ नीचे की ओर आते हैं ठंड में। विंटर विजिटर ही कहते हैं इनको। ये मंगला जोड़ी में करीबन 1 महीने पहले गई थी, तब कुछ पिक्चर्स खींचे, वो आपसे मैं शेयर करूंगी। ये जामनगर की तस्वीर है। ये पेलिकन से, ये ग्रुप ऑफ पेलिकन्स तालाब में अच्छी तरह से घूम रहा था। फिर उसमें से कुछ उड़ने लगे, ये उड़ते हुए पेलिकन से, ये रोजी पेलिकन से, और ये डल्मेशियन पेलिकन से। इनको मैंने नल सरोवर में खींचा था, ये इस तस्वीर को। हाँ, अब एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा, जब आइबिस चलता है तो उसके पीछे पीछे एक इग्रेट हमेशा पाया जाता है। तो ये इग्रेट इसका पीछा क्यों करता है? आई कॉल दिस इग्रेट एज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ आइबिस। अब ये इग्रेट इसका पीछा क्यों करता होगा? आइबिस की चोंच आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी चोंच है और चलते चलते वो बीच बीच में मिट्टी खोदते हुए चलता है। उसी प्रकार से वो जब चलता है तो उसके पाँव के नीचे की मिट्टी विस्थापित होती है। उसी वजह से मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे मेंढक या कुछ क्रैब्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं कीड़े मकोड़े, ये महाशय जो है इग्रेट महाशय, वो लपक के उनको खा लेता है। तो ये इसकी आदत रहती है कि आइबिस के पीछे पीछे घूमने से उसको अपना फूड आसानी से मिलता है, इसी कारण वो उसके पीछे पीछे घूमता है। यहाँ एक मछली इसने हासिल की है, तो हासिल की हुई मछली के साथ का एक फोटो मुझे, ये मंगला जोड़ी की फोटो है। ये वाला फोटो भी मंगला जोड़ी में खींचा है। ये भी मंगला जोड़ी का फोटो है। भुवनेश्वर के पास में मंगला जोड़ी। यहाँ आइबिस ने एक सांप को पकड़ा और वो सांप को निगल गया। अब ये आइबिस की आदत ऐसी है, एक साथ वो निगलता नहीं है, तो थोड़ा निगलने के बाद वो सांप को बाहर निकलता है मुंह से और वापस उसको पूरी तरह से निगल जाता है। तो ऐसे ही वो बाहर निकालने की कोशिश में था। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे आइबिस के गले में ये सांप जैसे अटक गया हो, इस प्रकार से कुछ महसूस हुआ और इसलिए मैंने ये फोटो खींची। आइबिस के गले में अटका हुआ सांप। सांप की साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। यहाँ पे ग्रे हेरॉन ने एक सांप को पकड़ा है और ये स्वैम्प है जो है वो झांक झांक के देख रही है उसे क्या मिला है, वो देख रही है कहीं ये मेरे खाने लायक तो कुछ नहीं है, उसमें से बचा खुचा कुछ मैं खा सकती हूँ या नहीं, इस ताक में वो थी। ये ग्रे हेरॉन ने पकड़ा हुआ सांप। अब ये सांप पकड़ने के बाद क्या स्टोरी हुई वो देखिए। ये सांप अपने बचाव के लिए उसने ग्रे हेरॉन की जो चोंच थी वो सील कर ली। यानी शिकारी ने शिकार को ही जकड़ लिया था। सॉरी, शिकार ने शिकारी को ही जकड़ लिया था। उसने अपने बचाव के लिए आखिरी सांस तक बचाव करना चाहा अपने, इसीलिए शिकारी की चोंच को पूरा जकड़ना चाहा। तो उस वजह से ये शिकारी उसको खा नहीं पाएगा और वो शायद जिंदा बच जाएगा। इस कोशिश में उसने उसकी चोंच को ही सील कर दिया। लेकिन आखिर में इसको
ये ग्रे हेरॉन ने खा ही लिया, लेकिन ये जूझते हुए नजर आ रहा है इस पिक्चर में। इस क्लिक में आप देख सकते हैं ये जो है ये पेंटेड स्टॉक है, उनकी चोंच काफ़ी बड़ी रहती है, तो वे पानी के नीचे से मछलियों को पकड़ के उछाल के खाते हैं। और ये जो गर्ल्स है वो हमेशा इनके आजू बाजू मंडराते रहते हैं इस ताक में कि शायद मछली अगर उनकी चोंच से छूटे तो ये ग्रैब करके उसको खा सकते हैं। इस वजह से ये उनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो एक मछली को उछालता हुआ ये पेंटेड स्टॉक, ये बिग वन में खींची हुई तस्वीर है। ये केनिया में खींची हुई तस्वीर है। ये अफ्रीकन फिश ईगल है। अफ्रीकन फिश ईगल जब मछली पकड़ता है तो वो अपने चोंच से मछली को नहीं पकड़ता, बल्कि अपने पंजों में पाँव में मछली को पकड़ लेता है और फिर एक आजू बाजू किसी पेड़ में पेड़ पे बैठ के उस मछली को नोच नोच के खा लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने पैर में मछली पकड़ी है और वो अपने ये अपने खाद्य को, अपने फूड को पेड़ की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं। ये एक गल को मछली हासिल हुई थी। जैसे ही इसको मछली हासिल हुई, ये जो बाकी उसके साथी थे उसके ऊपर झपट पड़े और उसके मुंह से वो मछली छीनना चाह रहे थे। इसलिए वो उसके पीछे पीछे उड़ रहे थे और ये भी शैतान वो मछली लेके बहुत तेजी से भाग गया वहां से। ये बिग वन में ली हुई तस्वीर है। ये तस्वीर जो है ये रेड बिल्ड हॉर्नबिल की है। इस तस्वीर में इस रेड बिल हॉर्नबिल को मैंने हमारे रेस्टोरेंट एरिया के रेलिंग पे बैठा देखा। मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी, सुबह का वक्त था और ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी, लेकिन इस एक तो गले में कैमरा अटका हुआ था क्योंकि वहाँ से हम लोग सीधे ही सफारी के लिए निकलने वाले थे, इसलिए कैमरा और सामान पूरा साथ में ही था मेरे। तो इसको रेलिंग पे बैठा देख के मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने उसकी तस्वीर उतारी। इसलिए मेरा कैमरा काफ़ी रेडी था उस समय और इसकी नज़र पूरे वहाँ रखे हुए प्लेटों पे थी, क्योंकि हमारे कुछ साथी वहाँ ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इतने में एक साथी वहाँ से उठा कुछ चाय लेने के लिए और उसकी प्लेट जो है वो अनअटेंडेड रह गई। तो देखिए कैसे वो उछल के वहां आया और उसने वहां से उस प्लेट में से खाने का टुकड़ा उठा लिया। यानी कुक किया हुआ फूड भी ये आइबिस ये हॉर्नबिल जो है वो खाते हैं, वो देख सकते हैं आप। यहाँ आप देखिए ये टेबल पे कैमरे पड़े हैं, हमारे कैमरा बैग्स भी पड़ी है और ब्रेकफास्ट के समय का ही ये एक प्रकाश चित्र है। और आइबिस को आप नॉट आइबिस, इट इज हॉर्नबिल, रेड बिल हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को आप देख सकते हैं कैसे वो अपना खाना उठा के भाग रहा है। आई विल कॉल दिस एज अ अपॉर्चुनिस्ट। एकदम रियली अपॉर्चुनिस्ट था वो, रियल अपॉर्चुनिस्ट था। जैसे अपॉर्चुनिटी मिला ग्रैब करके भाग गया। ये इंडियन पिट्टा है, इससे नवरंग भी कहा जाता है। पूरे नवरंग इसमें दिखते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत पंछी रहता है और बारिश की शुरुआत में वो यहाँ आता है। कहीं वो निचले एरिया से, यानी श्रीलंका से आदि आता है ऐसे सुना है। इसको मैंने बोर के जंगल में, बोर का जंगल नागपुर के पास में है, वहाँ क्लिक किया। इसको क्लिक करते हुए बहुत दुख हुआ क्योंकि ये कैंटीन से फेंके हुए जूठन खा रहा था वहाँ पे। तो कैंटीन से जो पका हुआ जूठा फेंका जाता है बाहर, उसके पास में उसको देखा मैंने। और वो जूठन यानी राइस और ऐसे दाल वाल जो फेंका था नीचे जमीन पे, उससे वो खा रहा था। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की ग्लास भी यहाँ पड़ी थी। यानी ये पूरा एरिया जो है वो वेस्ट फूड फेंकने का एरिया था, वहां पे उसको मैंने देखा। ये भी बोर की तस्वीर है। बोर के जंगलों में इंडियन रोलर है। इंडियन रोलर अपने बच्चे को कीड़े खिला रही है। इधर वो मुझे लगता है ड्रैगन फ्लाई रहेगा या शायद टर्माइड हो सकता है। वो कुछ खिला रहे हैं उसको। ये
हाइकी पे ली हुई तस्वीर है क्योंकि इसके रंग मुझे कैप्चर करने थे। सुबह का वक्त था और लाइट थोड़ी कम थी। ये अभी जस्ट 15 दिन पहले ही ली हुई तस्वीर है। पानी के पास ये बुलबुल दिखा, रेड वेंटेड बुलबुल दिखा और उसका रिफ्लेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आया, इसलिए मैंने तामनी घाट में ये तस्वीर को खींचा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नहाने के बाद ये बुलबुल वहाँ से उछला। सो आफ्टर बाथ उसको खींचने की कोशिश की, तो ये पानी के छींटे भी आप देख सकते हैं, वो पानी में नहा के बाहर निकला हुआ बुलबुल। ये गॉडविट से ये मैंने मंगला जोड़ी में खींची हुई तस्वीर है। पहले जब इसको देखा तो ऐसे लगा कि शायद ये एक दूसरे को खिला रहे हैं कुछ, लेकिन फिर ध्यान में नहीं आ रहे इनके पैर तो हवा में है, तो डेफिनेटली ये खिला नहीं रहे, क्योंकि अगर खिलाते रहते तो ये जमीन पे बैठे हुए रहते। फिर ध्यान में आया कि उनकी एक दूसरे के साथ फाइटिंग चल रही थी। फाइटिंग यानी एक्चुअली फाइटिंग, जैसे आदमियों की फाइटिंग हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना, डिशुम डिशुम, उसी टाइप की फाइटिंग चल रही थी। वो एक दूसरे को पंख से मार रहे थे, एक दूसरे को पैरों से लाते मार रहे थे, घूसे मार रहे थे और एक दूसरे को चोट से वो जख्मी कर रहे थे। तो ये जो उनकी फाइटिंग थी वो काफ़ी देर चली। मेरा कैमरा हैंड हेल्ड था, 100-400 लेंस लगी थी उस पर, क्योंकि ये पंछियों की तस्वीर खींचते हुए ज़्यादा करके मैं 100-400 या 300 प्राइम लेंस यूज़ करती हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं करती, तो ये हैंडल कितनी देर तक मैं उसे पकड़ी रहूँ, करीबन ये 5 मिनट तो कंटिन्यूसली ये झगड़ा कर रहे थे। यानी मैं फोटो ले लेके थक गई, लेकिन ये झगड़ा करते हुए नहीं थके थे, इतना उनका झगड़ा चल रहा था। ये नेक्स्ट तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए एक दूसरे को कैसे उसने अपने पंख से जकड़ के रखा है और उसके पंख नोच रहा है। मराठी में हम लोग बोलते हैं ना कि पिस्सा काटतो यानी तकलीफ देने की कोशिश करना। तो वैसे ही इसको मैंने देखा कि ये उसके पंख नोच रहा था। और कुछ तस्वीरों में देखा कि इसको उसने पूरा पानी के नीचे डुबो दिया था, पैर से दबा दबा के वो पानी के नीचे उसको डुबो रहा था। लेकिन इसमें से सिर्फ 2 सिंबॉलिक तस्वीरें मैंने यहाँ रखी है, क्योंकि ये पूरी सीरीज दिखाओ तो वीडियो देख के जो मजा आएगा वो स्टिल तस्वीरें देख के इतना ये नहीं आया, और पता भी नहीं चलेगा कि पानी के नीचे उसने पैर से दबाया हुआ है किसी को, क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। जब ये पानी के नीचे था तो बिल्कुल वो दिख नहीं रहा था, सिर्फ ऊपर ये अकेला दिख रहा था। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उनको आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये टांजानिया में खींची हुई तस्वीर है। ये 2 इग्रेट एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हुए नजर आए। तो पीछे का बैकग्राउंड जो था वो डार्क था, इसलिए इसको खींचा मैंने। ये वापस मंगला जोड़े की तस्वीर है। ये इग्रेट जो है वो एक दूसरे के साथ झूंझ ही रहे थे। ये इग्रेट जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, झूंझते हैं, तो लड़ते लड़ते वो हवा में धीरे 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 ऐसे ऊंचे चले जाते हैं और हवा में फिर उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। एक दूसरे को पंखों से मारते हैं, फिर एक दूसरे को लतियाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक दूसरे को चोंच से नोचते हैं। लेकिन ये फोटो खींचने के बाद जब मैंने इस फोटो को देखा तो मैंने ऐसा लगा कि 2 इग्रेट हवा में नृत्य कर रहे हो या आपस में उनका कुछ प्रेमालाप चल रहा है हवा में, ऐसे कुछ महसूस हुआ मुझे। देखिए लड़ाई झगड़ा, एक्चुअली ये लड़ाई झगड़ा था, लेकिन अगर आप फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि वो प्यार से एक दूसरे के पास जा रहे या कोई हवाई नृत्य कर रहे, ऐसे महसूस होता है। देखिए रामदेव जी का असर कितना है। न केवल हम लोग तो पंछी भी योगा करने लगे। ये एक पर्पल हेरॉन है, योग मुद्रा में मुझे मंगलाजुड़ी में मिला। और ये रोग फैल रहा है, देखिए ये अफ्रीकन गूज है जो नेक एक्सरसाइज करते हुए मैंने केनिया में खींचा। और ये शुतुरमुर्ग है और
ऑर्चर्ड से जो कवायद करते हुए देखे। ये टांजानिया की तस्वीर है। तो इस प्रकार योगा या एक्सरसाइज पंछी भी करते हैं, अपने आप को वो फिट रखते हैं योगा करके। ये तस्वीर मैंने तामनी घाट में खींची। ये एक फीमेल पैराडाइज फ्लाई कैचर है। फीमेल पैराडाइज फ्लाई कैचर के नीचे का ये हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर का है, इसका कलर ब्राउन है और पूंछ जो है वो छोटी है। ये आगे के इसमें आप देख सकते हैं ये मेल पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसका ऊपरी हिस्सा जो रहता है ये डार्क रहता है। थोड़ा लो लाइट में खींची हुई तस्वीर है, क्योंकि शाम के वक्त खींची हुई ये तस्वीर है। इसकी पूंछ लंबी है, ये भी ब्राउन कलर का ही है पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल, और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर फीमेल, तो इसमें डिफरेंस रहता है। और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर जब एडल्ट हो जाता है तो इसका कलर जो है ये वाइट हो जाता है, और इसकी पूंछ काफी लंबी है। उड़ते हुए वो काफी अच्छा दिखता है, काफी आनंददायी दिखता है उसको उड़ते हुए देखना। और ये पूंछ जो है वो हवा में एकदम अच्छे से घूमती है, और ये स्लिम बर्ड है, तो इसलिए उसे स्वर्गीय नर्तक भी कहा जाता है। अब मैंने ये तस्वीर जो है ये अफ्रीका में खींची हुई अफ्रीकन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पेट का हिस्सा जो है ये काला है, वेराज अपने यहाँ के पैराडाइज फ्लाई कैचर का पेट का हिस्सा जो था वो सफेद। ये मेल है पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसकी पूंछ आप देख सकते हैं लंबी है, ब्राउन कलर का पैराडाइज फ्लाई कैचर, लेकिन अफ्रीकन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। दो पहले वाले जो थे वो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर्स थे। ये माउस बर्ड है। ये ठंड का मौसम था, और ठंड के मौसम में ये एक गट्ठे में एक दूसरे को चिपक के बैठे, जैसे छोटे बच्चे ठंड में एक दूसरे को चिपक के बैठे, वैसे चिपक के बैठे हुए नजर आए, इसलिए फोटो निकाला उनका। हाँ, ये महाशय मार्शल ईगल, ये बहुत घुर घुर के मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मानो वो बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हारी तीसरी आंख तो मैं फोड़ दूंगा। यानी कैमरा लेंस फोड़ने की जैसे फोड़ने के लिए वो आने वाला है, इस तरह से वो घूर रहा था। एंग्री बर्ड, ये तांजानिया की तस्वीर है। ये सेक्रेटरी बर्ड, ये केनिया की तस्वीर है। सेक्रेटरी बर्ड करीबन 4 फीट ऊंचा रहता है, और वो जब चलता है जैसे आदमी चल रहा हो ऐसे लगता है। ये सांप खाता है, तो ये सेक्रेटरी बर्ड घास में सांप को ढूंढ रहा था, तब क्लिक की जीप में से उसको हमने क्लिक किया। ये सेक्रेटरी बर्ड जब उड़ता है तो पूरे रॉकेट की तरह वो उड़ता है। वो स्टार्ट ऐसे पर हाँ, परपेंडिकुलर एंगल में वो ऊपर जाता है और रॉकेट की तरफ उड़ जाता है। और एक बार वो ऊपर पहुंचता है तो ईगल उड़ रहे हैं या काइट उड़ रहे हैं या सेक्रेटरी बर्ड है, ये पता नहीं चलता है, इतनी ऊंचाई तक ये उड़ता है। काफी बड़ा बर्ड है। ये कोरी बस्टर्ड है। कोरी बस्टर्ड अपने यहाँ नहीं दिखता है, जीप के बिल्कुल पास था, लाइट अच्छी थी, इसीलिए मैंने इसको खींचने की कोशिश की। ये ग्रे क्राउंड क्रेन है, ये बहुत खूबसूरत बर्ड है। ये अपना कुछ वहाँ घास में फूड चुग रहा था। इसके आजू बाजू आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर थे, लेकिन वो उनसे डर नहीं रहा था, वो आराम से अपना खाना ढूंढते हुए वहाँ घूम रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी जीप इसके पास पहुंची वो वहां से उड़ गया। ये तस्वीर केनिया में खींची हुई है। यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये क्या पेड़ का पिक्चर रखा है। तो यहाँ ये पेड़ के बीच में आप देख सकते हैं एक उल्लू सो रहा है। दिन में ये उल्लू सोते हैं और रात में ये जागते हैं। ये ताडोबा की तस्वीर है। तो पेड़ के बीच में बैठा हुआ उल्लू, अगर जीप वहाँ बहुत फास्ट निकल जाए तो ध्यान में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के लिए जीप रुकी थी इसलिए ध्यान में आया कि ये उल्लू वहाँ सो रहा है। ये एक मोर की तस्वीर मैंने इसलिए खींची कि यहाँ आप देख सकते हैं उसके कुछ पंख गिरते हुए दिखे, तो ऊंचे पेड़ के टहनी पे बैठा हुआ ये मोर दिखा मुझे। ये झालना की तस्वीर है, इसके कुछ पंख गिरे हुए पंख यहाँ आप देख सकते हैं। ये बेरा की तस्वीर है। एक घर के फेंसिंग के ऊपर सुबह के वक्त ये दो मोर बैठे थे। इसमें इनके पूंछ नहीं है,
पूंछ के पंख शायद गिर गए होंगे। ये छोटा सा किंगफिशर है, ओडिकेफ ओरिएंटेड डॉर्फ किंगफिशर। हर फोटोग्राफर को इसकी फोटो खींचनी रहती है। बहुत छोटा और बहुत रंगीन खूबसूरत पंछी है, लेकिन इस पंछी की जब फोटो खींचते हैं तो आप देख सकते हैं हजारों फोटो इसी पोज में आपको मिलेंगे। आइदर उसके मुंह में छिपकली रहती है या उसके मुंह में ये क्रैब रहता है, और इसी प्रकार वो टहनी पे बैठा हुआ नजर आता है। इसकी फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर्स काफी पैसा खर्च करते हैं। करीबन 5,000 तक पैसे खर्च करके पूरे दिन तक वो हाइड में बैठ के उसकी फोटो खींचते हैं। लेकिन फोटो खींचने के बाद इसी प्रकार की फोटो मिलती है। इससे कुछ अलग एक्टिविटी मुझे नहीं लगता मिल पाती है उसमें। तो ये फोटो मैंने गुहागर में खींचा, ये चिपलून में खींचा हुआ फोटो है। और ये फोटो जब मैंने खींचा तब इसके पीछे एक स्टोरी है। ये बहुत गुस्सेल दिख रहा है किंगफिशर, क्योंकि यहाँ ऊपर उसका नेस्ट था किंगफिशर का, और उस नेस्ट के ऊपर चींटियों का अटैक हो गया था। यानी चींटियों ने पूरी एक मिट्टी की वॉल वहाँ खड़ी की थी उसके घोंसले में, और अंदर के उसके पिल्लों को खाने की वो कोशिश कर रहे थे। इसलिए वो गुस्से में वहाँ नीचे जमीन पे बैठा था, क्योंकि क्या करूँ मैं, इस हालत में वो बैठा हुआ नजर आया। पहले तो पता नहीं था कि इसके साथ ऐसे कुछ हादसा हुआ है। मुझे वो जमीन पे बैठा हुआ कुछ अलग नजर में अंदाज में दिखा, इसलिए मैंने फोटो खींची। उसके बाद में फिर हमने जानने की कोशिश की कि वो वहाँ क्यों बैठा था। तब पता चला कि उसके साथ वो हादसा हुआ था। ये वुडलैंड किंगफिशर है। ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये ज्यादा करके पेड़ों में बैठा हुआ ही दिखता है, वेटलैंड के पास नहीं दिखता, ये पेड़ों में दिखता है। तो इसे ट्री किंगफिशर कहा जाता है। इसकी चोंच आप देख सकते हैं, ये बाई कलर चोंच है इसकी, और ये बहुत शांति से पेड़ के छांव में बैठा हुआ मुझे टांजानिया में मिला। ये बाया पंछी है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले सेक्शन में कि इनके जो घोंसले रहते हैं वो अपने भारतीय बाया से अलग रहते हैं। तो अपने घोंसले पे बैठा हुआ है ये बाया पंछी। केनिया में क्लिक हुई तस्वीर है। ये टांजानिया में क्लिक की हुई तस्वीर है। ये रेड बिशप है, ज़ांज़ीबार रेड बिशप नाम है इसका। बहुत ही सुहाना पंछी है, लेकिन बहुत छोटा और बहुत अनस्टेबल पंछी है। इसको अब कैमरे में कैद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होने के कारण यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, और एक तो वो अपने स्पैरो से भी छोटा रहता है, इसलिए उसे पाना मुश्किल था। लेकिन आफ्टर ऑल आई वाज सक्सेसफुल इन क्लिकिंग दैट बर्ड। आज स्पैरो डे है, इसलिए मैंने ये स्पैरो की तस्वीर यहाँ रखी है। ये टांजानिया में क्लिक किए हुए स्पैरोज हैं। ये हमारी जीप खड़ी थी, जीप के नीचे ये स्पैरोज की दो आप देख सकते हैं, छांव में दो बच्चे हैं, और शायद वो कुछ पूछ रहे अपने माँ से, और माँ उसका जवाब नहीं दे पा रही। तो वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे दिखा, और मैंने वो नीचे जमीन पे बैठ के क्लिक की। जब हम लोग नेचर में फोटोग्राफी करते हैं तो अपने कपड़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। कहीं भी बैठ के कैसे भी फोटो मिलना ज़रूरी रहता है, तो कहीं भी सो के भी ज़मीन पे लेट कर भी फ़ोटो खींची जाती है। ये फ़ोटो जो है ये मैंने लॉकडाउन पीरियड में खींची। ये मेरे विंडो से खींची हुई फ़ोटो है। सामने के पेड़ पे बैठे हुए स्केलीमोनियाज दिखी। अभी विंडोज़ में एक्चुअली ग्रिल्स लगे हैं, तो ग्रिल के बीच में से फ़ोटो खींचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फ़ोटो ठीक ठीक मिल गई। उनके ऊपर थोड़ा सूरज की किरणें भी गिर रही थी, तो फोटो मिली मुझे। ये लॉकडाउन फोटोग्राफ्स है ये कुछ। ये आपस में बैठे हुए कम्युनिकेट करते हुए जुवेनाइल स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है, आपस में बातचीत करते हुए स्केली ब्रेस्टेड जुवेनाइल। और ये तो अपने सबके लिए ज़रूरी रहता है। एटलीस्ट साल के 15 दिन तो हम इसे खोजते ही रहते हैं किस चीज़ के लिए। तो ये पाइड क्रो जो है ये मैंने केनिया में खींचा। एक आध वकील जैसे बैठा हुआ ऐसे दिख रहा था वो पाइड क्रो।
तो इसमें आप देख सकते हैं 2 कलर है, व्हाइट और ब्लैक। ये केनियन पाइट क्रो है। तो यहाँ मेरे बर्ड सेक्शन मैंने खत्म किया। अगर आप चाहे तो मैं आपको लैंडस्केप दिखाऊंगी। Is there any time for the landscape? Hello, can I show you some landscape? ये जवाई बांध की तस्वीर है लैंडस्केप की। आगे आप देख सकते हैं ये पथरीला एरिया है, बीच में खेत है और पीछे ये जो पहाड़ है, पथरीले पहाड़ जवाई बांध के, बेरा के, वो देख सकते हैं। ये थोड़ा आगे जाके खींची हुई तस्वीर है, पानी के पास जाके खींची हुई तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरे पथरीले पहाड़ है और उनके रिफ्लेक्शन मिले मुझे। ये मंगला जोड़ी की तस्वीर है, उड़ते हुए टर्न्स दिखे और सुबह का वक्त था इसलिए मैंने एक तस्वीर खींची। ये तांजानिया की तस्वीर है। एक लैंडस्केप में ये बैठे हुए कुछ प्राणी दिखे, उनकी तस्वीरें। ये केनिया की तस्वीर है। केनिया में सवाना है। सवाना यानी पूरा ग्रास रहता है, उसमें एक आध दूसरा पेड़ आपको दिख सकता है। ये टांजानिया की तस्वीर है। पूरे ये येलो वीड फ्लावर्स है, उसमें एक हाथी को पाया मैंने। हाथी वहां से गुजर रहा था, तब निकाली हुई तस्वीर है, दूर से निकाली थी तस्वीर। ये अभी टांजानिया की तस्वीर है। कुछ जेबरे दिखे तो उनको दूर से खींचने की कोशिश की। ये भी टांजानिया की तस्वीर है। ये केनिया की तस्वीर है। ये केनिया का लैंडस्केप है। वहाँ पे जो आप देख सकते हैं पेड़ जो है, कैक्टस के काफ़ी सारे पेड़ रहते हैं और उन पेड़ों में इस तरह के कुछ क्रीपर्स भी पाए जाते हैं। ये फूलों से भरे हुए कुछ क्रीपर्स दिखे। ये नल सरोवर की तस्वीर है। नल सरोवर को सूरज डूबते हुए निकाली हुई तस्वीर है। जब नल सरोवर में बोटिंग करके वापस आ रहे थे लोग, तब निकाली हुई तस्वीर है। That's all.